एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, व्हाट डिड वी डू लास्ट टाइम? Homogenization. पेयर ऑफ लाइंस. Yes, sir. Homogenization. We had done that concept. Okay, ठीक है. Now we need to start circles. Is over no straight lines. Yeah, मैंने होमवर्क भेजा है ना? Yes, sir. आपने Yes, भेजा photos. pair of line. 8 photos. सर आप डाउट्स कब लोगे? सर डाउट्स कब लोगे? कौन से एक्सरसाइज के? आप सर्कल चालू करो कि डाउट्स करो? सर नहीं नहीं, I'm asking which सर exercise. 2A का 2A में 30 तक हो गया है। Okay, we में 30 You तक can हो take गया. circle and then you can start with circles once and for all. Okay, see what I will do is we're actually kind of behind in schedule actually. What I will do is मैं एक काम करता हूँ. I have solved many questions of 2A in other batches. What I will do is I will share that recording with you and the notes. If you have any doubts after that, then you can ask me. Okay. So I Okay, will batch 3 है ना तुम्हारा? एक second. Yes, sir. Batch 2 and batch 3. Okay, so I just did last time only I did, I think this time. Just give me a moment. One second. Yeah, you can have a look at this. Just tell me if you've gotten something on the group. Yes, sir. Yes, sir. So just have a look at that after the lecture or whenever. Then when we meet next time, if you have any doubts from that, or if I have not done some questions from that, then we can do. I've not completed entirely 2A in that, but I have done a lot of that. 2A तक करोगे तो अच्छा level होगा तुम्हारा. Now, circles. सबसे पहले circles में हम करने वाले हैं. सर आप TWT के भी डाउट्स लोगे? TWT के मेरे पास solutions है. I have the paper and the solutions. Sir, MT के लिए कितना करना चाहिए? In terms of? Sir, in terms of this exercises and in chapter exercise, when we studied. If you can reach 2A to B, then Yes. that is ideal. Okay, sir. You can manage to do complete 2A to B at least. That is ideal. If you can do 2A and a bit of 2B, that would be most likely what people would do if you want to prepare Yes, for JEE advance or mains? Mains मतलब 1A 1B 1C is mains level exercise. Yes sir, or advance? 2A to B. सर तो विंडो टू एडवांस वाली जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हो, but 2A to B तो minimum मतलब ideal है if you want to do. अच्छा ओके सर. सर आप Exercise साथ में 3 पेपर और सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं क्या? वो TWT का सॉल्यूशन. हाँ मैं भेजता हूँ. I just shut my मैं लेक्चर के बाद.
सर्कल्स जो है, हमें इसमें क्या है, इसमें कोई बेसिक्स नहीं करना है, डायरेक्टली हम इक्वेशन ऑफ सर्कल करेंगे। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में होता है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म वगैरह वगैरह, उसी तरह सर्कल के भी इक्वेशंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एक होता है सेंटर रेडियस फॉर्म, एक होता है जनरल फॉर्म, एक होता है डायमेट्रिक फॉर्म, और एक होता है पैरामेट्रिक। तो पहले हम ये 4 कवर करें। सबसे पहले सेंटर रेडियस फॉर्म, ये बहुत इजी है। सपोज अगर एक सर्कल है जिसका मुझे सेंटर पता है और मुझे रेडियस भी पता है, तो उस सर्कल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। सर्कल का इक्वेशन आता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि सर्कल का एक फैक्ट होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द बिटवीन द सेंटर एंड सर्कमफरेंस वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये लोकस की कंडीशन होती है। से हमें आता है कि x minus h square y minus b square is r। क्या वो इस समझ से समझे? I said here polar coordinates would be perfect now. Like to पोलर describe a कोऑर्डिनेट्स circle. का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, लोकस निकाल रहे हैं। तो अभी ये ऐसे इसको स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आएगा। दिस इक्वेशन लुक्स लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला, सो दिस इज कॉल्ड सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है ना? इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें ऐसे आएगा। इस तरह से इक्वेशन दिखेगा। ठीक है? Now, if you observe this equation, this is a 2-degree equation. 2-degree equation में there is no xy term, and x square term and y square term, उनके कोएफिशिएंट्स क्या है? One. 1 है, but I will say they are equal. Okay? ये 1 होना जरूरी नहीं है, because understand one thing, ये एक इक्वेशन है। किसी के मन में आया है कि दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर ले, तो वो कर सकता है। अलाउड है या नॉट अलाउड है? अलाउड है। मेरे मन में आया मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो इक्वेशन को दोनों साइड 100 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। इन दैट केस टर्म्स क्या आएंगी? दोनों की कोएफिशिएंट्स 100 और 100 आएगी, राइट? यस सर। Yes, sir. तो आएगी तो इक्वल आएगी ना। So अब ये as 1 long बोलना as ये गारंटीड है ना, समझ रहे हो? सो इन एनी केस ये इक्वल आएगी। यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, So, So but as long the as the- values of x and y are not same, no, but नो आई एम सेइंग देयर, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आर सेम। so as long as the coefficient of x square and y square term is same and there is no xy term, it is always going to be a circle. It is going to be circle equation, yes. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। Now let's say for example, सपोज ऐसे दिया है कि सेंटर है से 1,7, ठीक है, एंड लेट्स से इट्स गिवन दैट सर्कल passes through 0, -1, ठीक है। सो सर्कल का मुझे अगर सेंटर मालूम है और मुझे पता है ये इससे पास कर रहा है,
तो हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होगा? Distance Distance between formula the से two आएगा। points. So this is basically 1 plus 64, which is root 65. So if you want to write the equation of the circle in the slope point form, sorry, no, in the center radius form, तो ये ऐसे होगा, distance of the point from 1, 7 is 65 का स्क्वायर करेंगे तो 65 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये है इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, now sometimes you might be asked the reverse also, like for example अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, and you will be asked find the radius and center, कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? सर So we इसमें will find फैक्टराइज करना पड़ेगा x और y yeah, में। we'll find h and perfect square So we can complete find करना it पड़ेगा। by so we can two-degree find h equation. and we can find h Sir, and here f. we can take x square minus 4x here, then y square plus 16y, and we is equal to 5 in this case. Tell me, what do I need to add to complete perfect square? You know how to complete perfect square. No, I hope I We need to add a 2 for x, sorry, 4 for x and 64। So 64. Is that right? 64? yes. 64 ही है। अच्छा, LHS पे ऐड कर रहे तो RHS पे भी ऐड करना पड़ेगा, Yes। Yes. ठीक है। So now this actually becomes x minus 2 का square, y minus y plus 8 का square is, ये कितना घटिया वाली है? 73, which is basically 73 square root 73. So basically center क्या हो गया? 2, -8। Sir, we could also do by finding h and f, h and k from the minus 4x and 16y. and I'll then come to that. I'll come to that. 73 आ रहा है. Now this completing perfect square, ये हर क्वेश्चन में तो तुम नहीं करोगे. So like there needs to be a shortcut for this. ठीक है? Yes। So there needs to be a shortcut for this, and there is a shortcut for this. And there are formulas for this actually. And I'll show you how it is basically. देखो. So that actually comes from the general equation. So suppose I have an equation, general equation of circle, x square plus y square. ये x वाले टर्म को ना 2gx 2f by वहीं से चोरी किया है अपन जो प्रीवियस चैप्टर से. सपोज सर्कल का इक्वेशन ऐसा है. नाउ एक चीज देखो, जो हमने इसको एक्सपैंड किया है, समवन पॉइंटेड आउट, ये सेंटर रेडियस फॉर्म को हमने एक्सपैंड करके ऐसे वी डिराइव्ड इट, राइट. मैं इस लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है. देखो सेंटर रेडियस फॉर्म को एक्सपैंड करने पे ऐसे आता है, बराबर. हाँ हाँ. सो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कंपेयर करेंगे. सो लाइक इफ यू सी द कोएफिशिएंट्स, 2g is minus 2h, so h is minus g and 2f is minus 2k. I'll explain this. So k is minus f and constant term is this. अगर अपने को रेडियस निकालना हो तो रेडियस का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है. h square will be minus g minus f. So I will tell you what those formulas are. It's very easy to once you know. So radius का भी एक फॉर्मूला है जो डायरेक्टली आता है, and you don't have to complete perfect square in every question.
Okay, it's a very simple formula. Let me explain here. So center जो है h comma k वो minus g minus f आता है और radius ही आता है. So I'll explain how to get this now. ये मैंने compare करके किया है. So it's like you just compare every coefficient 2g minus 2h ये constant is equal. So ये compare करके ये आ गया. Now let me explain this. So how to apply this? That's more important. Suppose करो एक equation of circle है. ये है बराबर. एक चीज देखो, look at these two coefficients. ये coefficients क्या है x और y के? क्या है बताओ? 4 and 4 and minus 4 and 6. minus 4 and 6. minus 4 and 6 है बराबर. Okay. Yes. अगर मुझे सेंटर निकालना हो तो एक काम करो, नेगेटिव एंड आधा हाफ करो, नेगेटिव करो और आधा करो, क्या बनेगा? 2, -3. 2, वही है सेंटर, वही है सेंटर. माइनस जी माइनस एफ. कोएफिशिएंट 2g था ना, 2gx Yes. था ना, तो पहले हाफ करो तो g बनेगा, फिर नेगेटिव करो तो माइनस जी बनेगा. नेगेटिव आधा. ठीक है. It's like a trick or what? नहीं ऐसे ही बस. नॉट अ ट्रिक. फॉर्मूला हमने डिराइव किया. ये क्या है? Yes. ठीक है. मैं वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है वो बता रहा हूं. अच्छा, रेडियस अगर मुझे निकालना हो तो रेडियस का फॉर्मूला ये है, जी स्क्वायर Yes. प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट. अच्छा एक काम करो, इन दोनों को स्क्वायर करके, स्क्वायर क्या है इन दोनों का? Yes, sir. 13. 4 and 9. ओके. माइनस द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या है? -3. 3 + 3 हो जाएगा. बताओ कितना आंसर है? 6, 4. 16 or 4. ठीक है, वो रेडियस है. इज दिस क्लियर? Yes. सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज 0 सपोज. अच्छा, So from कैन यू टेल मी इसका सेंटर क्या होगा? बताओ. -1. Negative आधा. Minus half. So minus half, comma plus and 2. 1. माइनस हाफ कॉमा 1, मतलब नेगेटिव आधा. सही है इन दोनों का. रेडियस क्या होगा? स्क्वायर Half. एंड ऐड 1/4 होगा ना, स्क्वायर एंड ऐड किया और 1/6. माइनस कांस्टेंट टर्म. Yes. root of 1 by 1/2. 1/2. आ गया 1/2. समझ में आ रहा है कैसे निकलता है? Yes, sir. एक बार आप सेंटर का रिपीट करेंगे. नेगेटिव आधा. इन दोनों ये टर्म्स के कोएफिशिएंट क्या है? 1 and -2. नेगेटिव करो फिर आधा करो. ओरली बताओ. ये नहीं आएगा. ऐसा. समझ में आ रहा है? यस. ठीक है. ना ये पूरा स्टार्टिंग से कॉपी करना है. सर जनरल फॉर्म भी आपने बता दिया ना अभी. हाँ, what were you saying? सर आपने अभी जनरल फॉर्म बताया ना आपने अभी, जो 2g और सेंटर 12. जनरल बताया, फर्स्ट 2 बताया. यस सर.
डन सर। हो गया? यस सर। सर 1 सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ, डन सर। सर ये छोटा चैप्टर है। डन सर। हो गया? यस सर। So could you scroll up? कॉपी नहीं किया ऊपर का किसी ने? Yes, sir. One second. Yes, sir. Done.
So can you scroll हाँ. down? सर 1 सेकंड के लिए ऊपर लो ना, जल्दी कॉपी कर लो. हाँ सर, मैंने स्क्रीनशॉट दिया. Sir, please scroll down. हो गया. Yes, sir. So if the x square and y square terms, the coefficients aren't equal, then we'll get ellipse. देन फिर कुछ और होगा, Okay. हाइपरबोला भी हो सकता है. सर आप वो रिपीट कर सकते हो क्या, आपको आर कैसे आया? आर कैसे आया, दोनों को स्क्वायर करो. सर लाइक वो कोने में जो आपने किया है ना, वो जी स्क्वायर क्या? प्लस जी स्क्वायर थोड़ी प्लस आवाज नहीं आ रही. सर जी स्क्वायर मैंने बोला प्लस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर में ऐड करो. उसके बाद माइनस सी करो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. अब समझा? ओके सर. ये हो गया तो बता दो. So हो गया. ओके नाउ मैं अभी क्वेश्चंस दे रहा हूं. You are going to try these questions. Just give me a second. Sir, could you just scroll once to the part above completing square? मेरे को जो screenshot लेना है. एक मिनट.
Sir, this is to attempt now or for homework? This is? Now homework का क्यों दूंगा? Yes, sir. Yes. Okay, try the first two at least. How he got general equation? वो ऐसे ही बस general equation of 2 degree कैसा है? वो बस है equation. General equation of line भी होता है ना, ax plus by plus c equal to 0. वो कैसे derive होता है? वो तो बस ऐसे ही आ जाता है. सर सर्कमस्क्राइबिंग मतलब उसके वर्ड जो वर्टाइसेस रेक्टेंगल है उससे पास हो रहा है ना? हाँ, उससे पास कर. क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर लो पहले.
Sir, in question 3, it is length 8, right? हाँ 8. और थर्ड क्वेश्चन में कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ क्या है? 8. 8. ओके. Okay. See, first question. Okay, now how do you do the first question? Tell me. So So first we first can we find find the h and k center and then directly. we हाँ. find the radius. Yeah, so we can find h and k directly from the x and y Circle terms. passes through -4, -4. हाँ. Okay, there is no need for that. Can I just say very simple? Can I say that the unknown circle will be of this format? क्योंकि Okay. सेंटर सेम है तो ये जो बीच वाले कोएफिशिएंट्स है ये भी तो सेम ही होंगे ना. Oh, because they have no r term in them. खाली उनका रेडियस डिफरेंट होगा तो एक कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा वो. सही है. बाकी ये सेंटर तो सेम है तो नेगेटिव आधा दोनों का सेम ही है ना. फिर हम बोलेंगे कि -4 -5 करता है इसको सेटिस्फाई. ये आएगा अपने को इक्वल टू 0. सो लैम्डा कितना आ रहा है 32 + 55 87 का नेगेटिव. देयरफॉर आंसर क्या है. इससे डायरेक्टली आ गया ना उसमें फिर वापस से एक्सपैंड करो स्क्वायर को. समझ में आ रहा है. फर्स्ट हो गया. सेकंड करो अभी.
सर इसमें कॉन्सेंट्रिक -4 और -5 से जा रहा है कि वो बड़ा वाला? ये सर्कल जो गिवन सर्कल है वो क्यों दिया जाएगा कि -4 -5 से जा रहा है? टेल मी वन थिंग, अननोन सर्कल यस सर। ओके। सेकंड क्वेश्चन, 4 साइड्स है ऑफ द 7 रेक्टेंगल। minutes. इसे ये दो वर्टिकल लाइंस है ना, x = 1 x = 5 बराबर। यस सर। एंड ऐसे दो लाइंस ऐसे y = -1 y = 5, ये सर्कल इनसे पास कर रहे हैं ऐसे। नाउ ऑब्वियसली बताओ मुझे ये वाला पॉइंट क्या है? 1,5. ये वाला पॉइंट क्या है? 5, 5,-1. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रेक्टेंगल जो बनेगा, ये रेक्टेंगल का डायगोनल है, डायमीटर ये होगा। डायगोनल है, ये क्या बोल सकता हूँ कि ये डायमीटर है? Yes. क्यों है डायमीटर बताओ? So because that side is that angle is 90 degrees. That angle is 90 degrees. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, ये डायमीटर होता है बराबर, ठीक है। तो ये डायमीटर हुआ, क्या हम इसका सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं? Yes sir. सेंटर विल बी मिड पॉइंट ना? Midpoint. क्या है मिड पॉइंट? 2,3. Sorry, 3,2. सेंटर 3,2। हम लोग लेंथ भी निकाल सकते हैं, डायमीटर का वैल्यू कितना है डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा कि नहीं? Yes sir. But now we have r. We can directly like find radius. हाँ, डायमीटर से रेडियस आएगा ना, लेंथ मतलब। सो दिस इज 16 + 36 बराबर, यस सर। which is basically √52, which is So 2 2 √13. 13. So radius is √13. यस सर। तो सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, तो इक्वेशन क्या होगी? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंटर रेडियस फॉर्म मतलब। यानी 13 समझ में आ रहा है? ओके, प्लीज कॉपी दिस। So we can just leave it like this. व्हाट डज दैट मीन? No, like हाँ, we छोड़ don't. दो छोड़ दो, वो तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। Okay. Sir, in the first question, why did you replace the constant with lambda? बिकॉज सेम सेंटर है और डिफरेंट रेडियस है ना। Okay, so the rest of the equation remains the same except the constant. हाँ, सर इस Okay. इक्वेशन में हम लोग को कोई इट्स लाइक कांस्टेंट सेइंग बेसिकली, सपोज करो एक लाइन है और इसके पैरेलल एक लाइन है, तो उसका इक्वेशन ऐसा नहीं होगा हाँ सर। अननोन। तो उसी तरह सेम अननोन सर्कल है, उसका सेम सेंटर है, तो उसके बीच वाले कोएफिशिएंट सेम होंगे, एक्स वाई वाले, एक्स और वाई वाले। Yes sir, thank you. सर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा इसके आंसर में, तो फिर बाद में मतलब इसका मतलब क्या होता है? क्या?
इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, इसके जो आंसर है ना, ये जो इक्वेशंस ऑफ सर्कल है ना, जो अभी हम लोग ने निकाला, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, तो मतलब नहीं इसका आएगा तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, चल मतलब उसका जाता कोई है। अलग मीनिंग होता है क्या सर? मतलब यही हो सकता है कि सर्कल शायद ओरिजिन से पास कर रहा हो, बट अदरवाइज कोई मतलब नहीं। So if you don't get a constant term, हाँ, ओरिजिन फिर सेटिस्फाई करेगा ना, फिर हाँ. कॉमा जीरो करे, बट दैट्स इट, इट्स अबाउट इट, देयर इज नो अदर। So but if there was no constant term in general form, then r would have to be 0 now. नो, But the रेडियस constant term has इज नॉट minus r ओनली, square. Okay, h रेडियस square. इज नॉट, हाँ फॉर्मूला है दिया है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म नहीं आता उसमें। Okay. Third question of the, this question is a little weird. Center of the circle, which locus of the center, which, okay, circle touches x-axis and cuts an intercept of length 8 on the y-axis. Now this is like half the people will get this wrong or misunderstand this. So what it means is, I think everybody understands what is the meaning of a circle touching the axis, x-axis. Yes, It will be sir. a tangent. It's like tangent. one- X-axis is a tangent. Okay, what about the last part, which is it cuts an intercept of length 8 on the So y-axis? that What is means that? the point where it intercepts the line x is equal to 0. The distance between those 2 points is 8. No, okay, wait one second. So it means that the distance between the intercepts of y is 8. Okay, Like now, the two intercepts that it cuts. so it is touching the x-axis. This is very clear. What is 8 here? Tell me in this figure. Like, That let's say, point where it let's say is. this is Between the the two origin. Let's say this is The white A, let's part. say this is B. A and So B. What is AB 8 is here? AB is 8. AB. AB is 8. Cuts an intercept of 8 on the y-axis means this is 8. Intercept. Now, सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम लोग h, k लेंगे बिकॉज उसका लोकस निकालना है, राइट? ना कभी भी अगर सर्कल अगर y एक्सिस को x एक्सिस को टच करता है तो ये जो हाइट हो जाती है ये k होगी कि नहीं? Yes. This will be k because this is the y coordinate height, but this is also the radius of the circle. Yes. Yes, sir. रेडियस भी है, रेडियस भी है। अच्छा, ये चीज को
हम लोग x कोऑर्डिनेट बोलते हैं पॉइंट का, ठीक है। Yes, sir. नाउ द कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड Bisects the Bisects the chord. बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो ये 4 4 नहीं होगा, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, नाउ ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहाँ हम कंप्लीट करते हैं, ये रेडियस है। क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, बताओ। पाइथागोरस Oh, sir, Pythagoras. पाइथागोरस लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज r स्क्वायर। अच्छा, रेडियस अभी मैंने क्या बोला, क्या है रेडियस? K, sir. K ये is the है ना, radius. ये है फ्रॉम द तो K वाई square. वाला टच है। हाँ, तो h और k में रिलेशन आ गया, तो यही लोकस है सेंटर का। ये अपना आंसर है, समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है। ये थर्ड का क्वेश्चन दिखाओ ना एक सेकंड। हाँ, wait, let people copy this first, then I'll show on top. So here K was equal to R now. Yeah. Done, sir. So can you just explain the last step again? What is the last step? The Pythagoras. ये लास्ट स्टेप, Yeah. ये लोकस में h और k को x और y से रिप्लेस करते हैं। Okay. वो 4 और 4 कैसे आया था? क्या? 4 और 4 कैसे आया? सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी समझा पड़ती है। Bisect करता है दिया ना वो। टोटल। Perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. हाँ सर, 8 दिया था ना। हाँ, ये हो गया कॉपी करके। यस सर। सर अभी इसका क्वेश्चन दिखाओ ना प्लीज। Done, sir. Thank you. Done. Okay. So we did the general form, we did the center radius form.
Now we're going to do the next one, which is diametric form. Diametric form basically is like this. Suppose I have a circle. I have a diameter. And ये endpoints of diameters मुझे दे रखे. Okay. Now, now we did this exact thing in that rectangle wala question. हमने midpoint निकाला. You remember that? Rectangle का diagonal का. Yes, sir. Instead of doing that, all that thing, what we can do, we know that अगर ये diameter है तो ये angle 90 है, और अगर ये angle 90 है तो हम slopes भी use कर सकते हैं. आई बात समझ में? ये भी लगा सकते हैं. तो अगर हम ये लगा देते हैं y minus y1 इसका प्रोडक्ट -1 आता है. So, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे आता है. So basically what we get is this is what we get. Is this clear? इसको बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म. x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is 0. ठीक है. तो ये कॉपी कर लो पहले, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सर स्ट्रेट लाइन में कैसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था जिससे हम लोग को ग्राफ करने में मतलब इजी हो जाता था, तो सर्कल में भी है क्या ऐसा? सर्कल में बस सेंटर और रेडियस चाहिए होता है. अभी इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट करके कुछ नहीं, मतलब ज्यादा नहीं होता है.
Done, sir. हो गया? Okay. Try this question. So the way it works is at each point which is lying on the circle, the line joining A and like A to that point and B to that point should be perpendicular. For any point, yeah. Okay. I'll give you more questions, but that will not be based on this diametric form. So this is different. ये कॉपी करो सारे क्वेश्चंस ट्राई करो.
फर्स्ट हो गया? Yes, sir, and second also, but third is doing. Okay. I hope you all copied the questions. I'm doing the first one now. First वाला देखो, जो सर्कल है, obviously the line उसके intercepts हमें दे रखे हैं. This is A and this is B. Intercepts are small a and small b. You have to find the circumcircle of this triangle. This is a right angle triangle. Obviously, it means that this line is the diameter. Barabar? Now, if this is the diameter, then we will use diametric form instead of the taking the midpoint and all that. X minus x1, x minus x2 plus y minus y1, y minus y2 is 0. So x square plus y square minus ax minus by is 0. Clear? किसी को कॉपी करना ही है या मतलब can we move to the next one? So you can continue. Okay. Second wala basically okay, x1 x2 are roots and y1 y2 are roots of this. We have to find circle with x1 y1 x2 y2 diameter. Now see the second question basically डायरेक्टली बता ही दिया है तुमको कि जो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है वो क्या है. We just have to expand diametric and use sum of product of roots. करेक्ट, ये डायमीटर्स का एंड पॉइंट है तो इक्वेशन जो होगा वो इस तरह से. Then you actually when you expand it ऐसा आता है. And then you use sum and product of roots. Sum of the roots is minus b by a. Product of roots is c by a. So ये इक्वेशन आ गया. सही है, मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी कॉपी कर लो. देन आई विल डू द थर्ड वन. सर हो गया. Okay. Third wala. Okay. Now if you look at the third question,
बेसिकली हो क्या रहा है, there is a circle which is touching both the x and the y axis, बराबर, in Yes, the sir. first quadrant. उसका रेडियस 2 है, Center will be 2,2. so ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 2 है, इसका मतलब इसका सेंटर 2,2 होगा. Yes, sir. So now इसका फर्स्ट का इक्वेशन बड़ा आसान है, x minus 2 whole square y minus 2 whole square is 2 का square. That's the equation of the first circle. So there's another circle which is basically touching it. Touching it का मतलब ऐसे टच करके ऐसे जा रहा है. उसका सेंटर हमें दिया है 6,5, बराबर. 6,5. Yes, sir. ठीक है, रेडियस नहीं पता, Sir, इसका निकाल रेडियस कैसे निकालें इस वाले Distance formula and then we formula minus it हम with 2. उससे -2 कर देंगे. किसका So the माइनस 2 distance between 2,2 Third, and yes, sir. 6,5 will be the addition of both the radiuses of the circle. Correct. When two circles are touching each other externally, ये बाद में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, जो इनके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली दोनों रेडियस का सम होता है. करेक्ट. नाउ what is the distance between their centers? 5. Distance between the center 5 आता है. Yes, sir. ये 2 है, तो इससे पता चलता है कि R2 की वैल्यू 3 है. 3. ठीक है. Yes, sir. तो ये 3 है, इसका रेडियस 3 पता चल गया. तो एक बार इसका रेडियस पता चल गया, सेंटर 6,5 दिया, तो सेकंड वाले का जो इक्वेशन है ये ऐसे आता है. क्लियर है? बस ऐसे तुम छोड़ सकते हो. एनी डाउट्स हियर? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स को आपने डायमीटर लिया है. डायमीटर कहाँ है? मैंने कब बोला? R1 R2 को वो D लिया है. हाँ तो So R1 found का R2 and after that he had the center and radius. D is the ये distance. डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो. I've already explained it. Please pay attention when I'm explaining. Okay. हाँ, ये कॉपी करके होगा तो बता दो. Sir, 1 minute. Okay. Now, before we move to the last form of the equation of circle, let me talk about intercepts. So intercept straight line may be referred to as like where it cuts the axis, but यहाँ पे intercept का जब length की बात करते हैं, so let's say there is a circle
So we generally, when we talk of length of intercept, this is what length of intercept means. Okay. So let's say this is the x, length of x intercept. Now, there's a very easy way to find this out. Let's say this circle है, इसका center minus d minus f. And let's say इसका radius का formula क्या था? g square plus f square minus c. बराबर की नहीं? Yes. Okay. Now, if I want to find the length, basically a chord है ना circle का. Perpendicular to the chord bisects the chord. Okay. Now, ये radius है. Okay. Now we are going to use Pythagoras like we used in one of the questions. बताओ मुझे ये length कितना होगा? So whatever the, oh, this is x, okay, it will be f. ये मतलब high distance from the x-axis है ना? So f, f. But y coordinate तो minus f है. Okay, so the answer should be actually mod of minus f. Because distance की जब बात करते हैं तो हम coordinate negative हो सकता है, लेकिन distance cannot be negative, so we put a mod sign. Do you agree? Yes. Yes, sir. Okay. ये रेडियस है जो अपने को पता है इसका फॉर्मूला. अच्छा, अगर मुझे ये लेंथ मिल गया x, तो ये क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये x है तो ये भी x है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट विल बी 2x, नो? 2x. ओके. नाउ x हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से. Yes, sir. हाँ सर, मुझे यही पूछना था, वैसे भी हम f को स्क्वायर करेंगे तो मॉड लेना या मॉड नहीं लेना क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, लेकिन लोग गलती करेंगे, इसीलिए you have to be very careful. In other situations, people will make mistakes. If we are careless now, we'll be careless in every situation. हो गया? R square will be according to the formula. It's this, no? F square cut हो जाता है. What does this give us? X square is equal to g square minus c. G square minus c आता है. सही है? So what is length of x intercept? Isn't it 2x? Yes, sir. ठीक है? Similarly, y-intercept भी आता है and the expression is quite similar. Pythagoras से ही आता है. अगर हमें y-intercept निकालना है, निकाल length. Instead of g, now you have f. Yes, sir. इस तरह Yes, से sir. आया. ठीक है? Okay. काम करो. Do one thing. Copy this. ये हो गया था ना? हाँ, ये कर लो copy. So y will be 2 root f square minus c, no? What? हाँ, वो तो लिख दिया है f square minus. Sir, for the height to be f, it would have to be the origin line, right? मतलब वो जहाँ No, पे it is the x-axis. It is the x-axis, not the origin. अच्छा हाँ, okay. Distance on the x-axis ही है ना.
So can you explain that part where you're saying that the length of intercept is 2x? I mean, like, I didn't understand how you got that. Is the midpoint, no? So but like intercept of what? Which point are you finding it for? Or We are what finding the line? chord length is 2x. That is called length of intercept. Okay. Also, sir, like, can you repeat what you said about that f as in the length? How did you get it as f? Like, is that point where the which is the एक midpoint? मिनट Is एक that the मिनट origin? एक मिनट ये x axis है. Suppose this is point 2, 3. तो ये distance कितना है? 3. How do you get 3? Sir, I got it. That is the origin, basically. That is not the origin. Like the point where it's at a distance of 3 from the x-axis, so that's why. X axis से distance x. Yes, sir. Sorry, my bad. सर नीचे स्क्रॉल करो ना. हाँ एक मिनट. Done, sir. हो गया? ओके. ये हो गया सबका कॉपी करके? Yes, sir. Okay. Now, there are a couple of things inside the square root. एक radius का formula है, which is under root g square plus f square minus c. Okay. Suppose करो मैं तुमको एक circle देता हूँ. इसका रेडियस निकाल के बताओ क्या आएगा. जी और एफ. अच्छा सेंटर क्या है बताओ पहले. सेंटर क्या है? नेगेटिव आधा क्या है बताओ. 6, -3. और रेडियस क्या है बताओ. g square plus f square minus c. -9. ये इमेजिनरी आ रहा है ना. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो सर्कल इमेजिनरी होगा. इसीलिए ऑब्वियसली ये क्वांटिटी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कभी भी. अच्छा अगर ये चीज 0 होती है तो इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि रेडियस 0 है. रेडियस अगर 0 होता है तो इसको पॉइंट सर्कल कहा जाता है. सर्कल एक्चुअली बिकम्स अ पॉइंट. क्लियर है? Yes, sir. So only one point satisfies. हाँ, सर्कल ऑफ रेडियस 0. एक और चीज है, दो और चीजें हैं जो अंडर रूट में है.
and that is x intercept and y intercept. x intercept भी तो ये है, ये भी अंडर रूट में है. इसमें भी 3 केसेस आएंगे. g square minus c पॉजिटिव, g square minus c 0, g square minus c नेगेटिव. नेगेटिव तो अलाउड ही नहीं है. सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता, इमेजिनरी आएगा. अच्छा, अगर जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो एक्स इंटरसेप्ट तो रियल है एंड इट इज एग्जिस्टिंग. अच्छा, जी स्क्वायर माइनस सी अगर 0 हुआ तो इसका मतलब लेंथ ऑफ Tangent. इंटरसेप्ट 0 हुआ ना. यस लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट Tangent. अगर 0 तो इसका मतलब टेंजेंट होगा, टच करेगा. और जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट. इसके लिए लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज इमेजिनरी. इसका यही मतलब हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता. Yes, sir. So this is like what we पैराबोला had में done with किया था. parabola. हाँ sir. And the same is the case with the y-intercept. So y-intercept का जो लेंथ होता है वो ये होता है. If f square minus c is positive, so y-intercept तो अच्छे खासे हैं, तो मतलब ऐसा डायग्राम है. अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 0 हुआ उसका मतलब है कि वो टच कर रहा है एक ही पॉइंट पे, तो लेंथ इसलिए 0 है. और फिर नेगेटिव होगा, इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट है ही नहीं. यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. ये भी कर लो कॉपी. इससे रिलेटेड कुछ चिंदी होमवर्क मैं देता हूँ ताकि एटलीस्ट फॉर्मूला वगैरह सब क्लियर हो. Sir, so like, is this another condition we should put to like condition for circle which we had found at the beginning? At the beginning we had just said no इंटरसेप्ट्स x. आर नॉट कंडीशन. मतलब ये जो पहला वाला है वो कंडीशन नेसेसरी है. हाँ, okay. इंटरसेप्ट्स वाला नीड नॉट बी नेसेसरी. Yeah. सर आप एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो. Yeah, but let people copy this first. सर तो पॉइंट सर्कल एक सर्कल है या एक पॉइंट है? क्या चीज? सर पॉइंट सर्कल एक सर्कल है या एक पॉइंट है? दोनों है. सर बट सर्कल तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना. पॉइंट्स तो लाइक एक सिंगल यूनिट ही है ना. ऐसा किसने बोला? ये कौन बोलता है पॉइंट्स सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स? ये कहाँ लिख रहा है? सब लोगों को तो ज्योमेट्री में ऐसा ही डेफिनेशन था. मुझे तो नहीं पता है. बट पॉइंट सर्कल भी एक सर्कल है, डिस्टेंस बस रेडियस 0 है. सर हो गया. टीचर्स को हो गया. यस सर. राइट यस सर. ये कर लो. सर इसके बाद आप और पढ़ा रहे हो? और नहीं. सर वैसे सर भी वो होगा तो लीव कर सकते हैं.
हाँ बोलो, I'll give you homework on this चिंदी questions, मतलब because इसमें MT आ रहा है तो तुम लोग एटलीस्ट कम से कम चिंदी क्वेश्चंस कर लो ताकि फॉर्मूले वगैरह जो भी बताया मैंने यहाँ पे वो याद रहे, ठीक है। सर वैसे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होगा ना, बिकॉज यू मीन लेंथ। हाँ रूट है ना, रूट आ रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। 1a 1 2 24 इसमें चिंदी पिंदी क्वेश्चन है सब, ये कर लेना सर्कल का, बुकलेट मिला है तो। ऊपर जाओ ना x इंटरसेप्ट पे। हाँ ये हो गया, बाकी लोग हाँ सर। ठीक है। 1a 1 to 24 लिख लेना। हाँ someone wanted to go on. Bye sir, thank you. सर x इंटरसेप्ट पे वो डायग्राम जो आपने 3 बनाए। कहाँ? सर नीचे। वो वो y आप इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट का लेंथ। नहीं सर, वो जो आपने 3 डायग्राम है ना, ग्रेटर देन 0 इक्वल, हाँ ये y इंटरसेप्ट है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है व्हाट यू वांट। ऊपर। So is the class over? Yeah. Okay, thank you, sir. Bye, sir. सर होमवर्क कौन सा था? क्या? सर ने होमवर्क क्या बताया, आप रिपीट करेंगे? मुझे समझ में नहीं आया, मैंने तो उसका किस पूछा उसका डाउट ले रहा था। नहीं सर, आपने कुछ कहा ना एक्सरसाइज 1 का होमवर्क। 1 to 24 लिखा था, नीचे लिखा था लास्ट पेज। ओके सर। Sir, can you repeat when will you be discussing that those pictures you sent on straight lines when? Pair of straight lines. The week Yeah. on the empty week, the week before empty. Okay sir. Thank you, sir. Bye. Sir, so from now onwards, whatever classes we'll have, you'll take doubts, right, of straight lines? At least the week before empty will be. Okay sir. But I have sent, I think तुम लोग को मैंने ग्रुप पे भेजा है, एक बार देख लेना क्या। सर अब वो TWT का सॉल्यूशन भी भेजना ना। हाँ ठीक है।